Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, the area where people do sit. And earlier you can say it about that 20 and maybe 30 times this area would have been actually cleaned. And the person actually comes, sits there over here, brings some edible, particularly plastic, and maybe most probably in the morning they are not actually seen, maybe in the evening. And this plastic shows it about that. They are actually doing the thing intentionally. They think it about that, let the thing be done there and there, out of their dirty mind, you can see here. And this plastic, the area I just earmarked today, and that was actually up to that much of the thing, but I do see it over that. If I get the time, I will make it to be just clean like that, you can see. Here we see them, see this pigeon. Pigeon got the, I think, somewhat neat and clean area right now. They are actually just picking the edibles actually thrown on the path to the person. But one thing actually just lesson in the sense, the plastic they were actually bringing, right now they actually just keep with them, because plastic is not actually being seen, but some of the person actually do the thing. Or you see the thing here, it is, you can say it over that beaten rice, or you can say chida in Hindi, or some of the food grain actually put there over here, it not here. And when you look hither and thither, in the vicinity, you find something, some beauty and some dirty together. This is what is the nature of the human being. You not see, or you can say it about that. But I'm happy enough in the sense that you see the thing, some fruits are there in the tree, and this tree has also actually got some of the thing that is nice one, you can see here. You not see. And one slogan was there, who made it to be torn, whether it is wind or not. कुछ मिनटों का श्रमदान पार्क में ला सकता मुस्कान. Very nice thing. It was also composed by me. It is a slogan. If person understand it, there will not be any problem. We not here. But problem here is that it is human nature. We take the thing very easy. We simply think that we are not actually doing the thing. You know? Yeah. Yeah. This one. हाँ. कबूतर just a thing. Yeah. ये जवान लड़का है, थोड़ा इससे भी कुछ बातें करें. और इससे एक प्लस पॉइंट इसमें देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराता रहता है. कुछ ऐसी बातें कह देता है जो कहना तो चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन है. अब आज मैं इसका ही इंटरव्यू ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना. हाँ, ये बेचारा ठंडे की वजह से कोल्ड वेव है ना, कोल्ड वेव भी यहाँ पे है. हाँ, कोल्ड वेव है. और ये जैसे हमने कभी पूछा था, ये ग्रेजुएशन कर रहा है ना. अब चलो थोड़ा इससे पूछते हैं, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट ले रखा है आप? बीए में ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? पोल साइंस ऑनर्स है. लेकिन पोल साइंस ऑनर्स क्यों लिया? कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकता था? कुछ इंटरेस्ट, नेता बनने का शौक है? या आईएएस में जाना है, या सिविल सर्विसेज करना है? क्या करना फिर? जिसमें दोस्तों ने सबने लिया, मैंने ले लिया. ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, जो सब करे हम भी करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना. तुम्हारा मन जो कहता है उसको करो ना. सबके चक्कर में गो भेड़िया आसान हो जाएगा नहीं, गिरेगा लो गद्दे में, है ना. तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, अभी जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, और तुम कहाँ तक उसमें सफल हो रहे, कैसे कम्पीट कर रहे हो? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखो, जैसे क्लास 10 हो गया, उसमें साल में 2 बार तुम एग्जाम दे सकते हो, या 12 में भी ऐसा हो गया. पहले फेल होने से कंपार्ट होता था, अभी कंपार्ट नहीं होता है ना. क्या लगता है, ये सही है या गलत है? क्यों? जैसे तुम्हारा पहले राइट टू एजुकेशन के तहत क्लास 8 तक सबको पास कर दिया जाता था. नतीजा क्या हुआ कि अभी हम हैंडीकैप्ड बनते, मैंने हम देख रहे हैं स्टूडेंट ऐसे जो उस समय का है, सारे के सारे हैंडीकैप्ड हैं. हैंडीकैप्ड इन द सेंस उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पास कर गए, 10 में आ गए. उसके बाद नतीजा यह हुआ कि फेल. एजुकेशन सिस्टम में भी एक तरह से तुम कह सकते हो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं है. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, हम पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिखने के बाद खड़े हो जाते हैं लाइन में, बेकारों के लाइन में, है ना. इसका क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, जो बेकार की लाइन में तुम खड़ा नहीं हो? जैसे बीए पास कर लिया, ऑनर्स भी कर लिया, एमए भी कर लिया, अब क्या है चक्कर नौकरी खोजना, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, एज खत्म हो रहा है, फिर बेकारों के लाइन में हम खड़े हो रहे हैं. इसका कोई सुझाव देगा? क्योंकि आने वाला 10 साल तुम्हारा ही होगा, हम लोगों का तो टाइम बीत गया. कुछ भी काम कर लो, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता. अच्छा, कुछ भी का जैसे यानी बिजनेस भी कर. एक बात मुझे बताओ, नहीं ठीक है, बिजनेस करने में भी मुझे जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बोलता है, सुनो, पैसे नहीं, जो आदमी किसी दुकान में नौकर का काम करता है वे बाद में सफल बिजनेसमैन बनता है. तुमने 5 लाख या 10 लाख पूंजी लगा लिया, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारे पैसे ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, है ना. हमने कई लोगों को देखा है ना. अब जैसे मान के चलो, चाहे अंबानी को ले लो, चाहे दूसरे लोगों को लो, बिल गेट को ले लो, वो सारे के सारे नीचे से शुरू किए हैं, फिर ऊपर बढ़े हैं, है ना. तुमने राज कपूर के बारे में
में सुना होगा, उसके फादर ने कहा बेटा अगर अच्छा एक्टर बनना है तो पहले कैमरामैन बनो, है ना। कैमरामैन बनो तभी तुम अच्छा बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। तुमने देखा वैसे लोग जो ग्राउंड लेवल से चले, जैसे तुम्हारा शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है, वो आज भी सक्सेसफुल है। जो किसी के सहारे आया, एक आध फिल्म में आया, उसके बाद ख़त्म, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अगर ज़िंदगी हमसे बहुत ज़्यादा सबक लेता है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ डिफ़िकल्टी पैदा करता है, वो कहीं ना कहीं हमको चमकाता है। जैसे सोने को जितना पीटा जाता है उतना ही चमकदार होता है, उसी तरह किसी व्यक्ति को अगर बनाना है, उसको खूब पीटने का मतलब मुक्का नहीं मारना है, उससे इस तरह चैलेंजेस दो ताकि वो लाइफ में खड़े हो जाए, है ना। जैसे मान के चलो हमसे तुम्हारे कई बार बातें हुई, कुछ कुछ बातें अच्छी लगती है, कुछ कुछ नहीं भी लगती है, फिर भी तो ज़िंदगी है यार, सब आदमी तो एक जैसा तो हो नहीं सकता, है ना। और जिस दिन एक जैसा हो गया तो तुम्हारा डिस्कवरी होगा ही नहीं, होगा क्या, नहीं होगा डिस्कवरी होने के लिए एक कहते हैं कि तुम्हारा कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, और पंजाबी में बोलते हैं मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, है ना, और मैनी माइंड्स, ये होना एकदम जरूरी है। अरे यार कहो नो प्रॉब्लम। तो खैर उसको छोड़ो, मुझे क्या आता नहीं आता मुझे क्या है, तुम मेरे से क्या सीख सकते हो ये तुम सोचो, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 64 years राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू आर नॉट इवन हाफ, यू नॉट से, बट आई एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, समथिंग यू कैन कंसोलिडेटेड, समथिंग यू कैन सॉलिड in your life so that other person can tell, oh see this aspect ही कुछ, है ना। I mean to say देखो चश्मा के पीछे भी हंसता हुआ आँख, है ना, नया नया ये मुँह से निकलता हुआ जवानी को दर्शाता हुआ दाढ़ी भी, है ना, ये हंस भी रहा है। और चलो थोड़ा सा इधर में कबूतर के पास में चलता हूँ, है ना। एक मिनट हेलो। तो now the question here is that these pigeons are there, ये कबूतर भी हैं, है ना, और ये लड़का भी साथ साथ रहता है, ये बेचारा आज खुश है, नहीं मारेगा ये, है ना, नहीं मारेगा। आप देखो यहाँ पे ये कबूतर भी कम से कम अपना फ्रीडम को समझ रहा है ना, वो भी तिरंगा के पास बैठा हुआ है, उसे भी तिरंगा से कुछ लेना है ना। तब यहाँ पे खैर जो भी हो, ये पेड़ को मैं देखता हूँ, उन बच्चों को कोई बात नहीं हो जाएगा। हेलो, इसका आज एक बात मुश्किल लग गया ना, आज इसी से कोई कंटिन्यू कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, आ जाओ प्लीज़। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो ये जो कबूतर हैं, क्या इसके पास फालतू सोचने का जगह है क्या? नहीं ना, ये बेचारा व्यस्त है, देखो किस तरह प्यार से खाना खा रहे हैं, ना, देख रहा हूँ मैं, खाना खा रहे हैं, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन आदमी के साथ ऐसा क्यों होता है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इस एरिया को हमने आज कवर अप किया था, कवर अप करने के बाद इसके वीडियो बनाए, और मैं हाँ मैं आज फिर कवर अप आधा कवर करूँगा, लेकिन इस बच्चे से पूरी बातें नहीं हुई, है ना। चल भाई एक बात और, अपना नाम फिर से बता दे, मैं नाम भूल जाता हूँ कि उम्र हो गया 64, है ना, बहुत से लोगों से मिलता हूँ कि कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। नाम बता दो अपना। हाँ पूरा, वेरी गुड। पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? पेरेंट्स कहते हैं रिटायर, कहते हैं कर्नल है ना, कर्नल। हाँ गवर्नमेंट जॉब है। कर्नल मतलब आर्मी में? कर्नल है ना, कर्नल। हाँ उसका पूरा अकाउंट्स का काम। अच्छा, कर्नल का अकाउंट्स का काम करता है, ठीक है, वेरी गुड। देखो तुम ही कहे, तुम्हारे हिसाब से भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, नहीं। अब तुम्हें एक घटना में बताता हूँ, एक लड़का घर से भाग गया, पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, भागने के बाद उसको क्या काम मिलेगा, तो हॉस्टल में बेचारा काम करने लगा, क्या, सफाई का। और अभी उसके पास करोड़ों रुपए का संपत्ति, क्योंकि वो नीचे से शुरू किया था, ऊपर सीख लिया, है ना। तो इसलिए अभी तुमको हमने एक बात और समझ लो, जिसको बेचना आ गया वो ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। बेचना का समझते हो मतलब? बेचना आना चाहिए। तुम्हारे पास मुस्कान है, मुस्कान बेचो, है ना। तुम्हारे पास गान है, गाना मतलब गाना, तो उसको बेचो। अगर नेता हो तो भाषण बेचो, अगर बनिया हो तो राशन बेचो, और शिक्षक हो तो एजुकेशन बेचो, है ना। अगर बेचना आ गया तो निश्चित तुम सफल होगे, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि बेचना अगर सीखें कैसे, है ना। जैसे मुझे लोग बोलता है बेचने के लिए, तो मैं बेच ही नहीं पाता हूँ। उसके रीज़न है कि भाई कोई आ गया, सर हमको दिक्कत है, चलो ले जाओ, कोई बात नहीं, है ना। तो उस तरह से बिज़नेस नहीं होता, बिज़नेस में कुछ ना कुछ ये होता है। तो फिर भी इतना भी कैलस नहीं होना चाहिए, कि इतना भी अनफीलिंग नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब आदमी को ज़रूरत है तो उसको तुम ये नहीं मदद करो, तो फिर आदमी कैसे हो, है ना। अच्छा, कुछ बात मैं यहाँ दिल्ली के बारे में बात करता हूँ। जैसे आए दिन न्यूज़ में मैं पढ़ता हूँ, है ना, कि किसी के घर, अभी 2 दिन पहले हमने देखा एक आदमी क्या किया, जहाँ पे उसका न्यूज़ बॉक्स था उसको बंद कर दिया। उसने न्यूज़पेपर वाले को बोला कि तुम कॉल करके मुझे ये दो। तो बोला क्यों, उसमें तुम्हारा भी टाइम खत्म होगा, हमारा भी टाइम। तो उसने जानते हो क्या जवाब दिया? बोला टाइम खत्म होने दो, हम 500 रुपये अलग से देंगे, कम से कम कोई हमसे बात तो करने वाला होगा। हमारी पत्नी थी वो मर गई, बेटा है कभी फ़ोन आता है नहीं आता है, कुछ नहीं आता है ना। और उसके बाद जिस दिन जैसे मान लो घंटी नहीं बजेगी तो तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि हम मर गए, है ना। तो अगर इस तरह की बातें हैं, जिस बाप ने पढ़ा लिखा करके बच्चे को अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, जहाँ भी भेजा, क्या उस बाप का ये पनिशमेंट है कि अकेले रहो बच्चा, है ना, घर में हो, है ना।
मरते हैं तो आज लोग कंधा देने के लिए 4 आदमी नहीं मिलता है, पड़ोसी से बात नहीं करता है। हमने सुना दिल्ली दिल वालों का है, लेकिन ये 8-10 महीने साल भर, अच्छा फरवरी आने से साल भर हो जाएगा, बीच में गायब थे। मुझे तो आज तक एक भी दिल्ली वाला नहीं मिला यार, है ना। हो सकता है तुमसे मुस्कान देख करके मुझे लगता है ना। तो चलो भाई कुछ चेंज तो करो, माइंडसेट चेंज करो, है ना। दिल्ली है तो दिल्ली को दिल वाला ही रहने दो, वैसे वाले नहीं कि हम जिस झूठ मूठ का है ना फालतू का मैं ईगो लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ठीक। अब यहाँ तो ये तो बूढ़ों की बात हो गई, आप खास करके उन लोगों की बात में बताओ, जैसे कि ये जो बच्चे यहाँ पार्क में रहते हैं। कल भी हमने पूछा था, छोटे छोटे बच्चे, उसके मुख से गालियाँ निकलती है, उसको मीनिंग भी मालूम नहीं है ना, उसको मीनिंग मालूम नहीं है ना, लेकिन वो क्यों गाली देता है? वो सुन रहा है अपने परिवार में, अपने समाज में, है ना। क्या इसको हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना, लेकिन कैसे बदलेंगे? जब अपनी भाषा में बदलेंगे तब ना, है ना। कल हमने भी कुछ गालियाँ कोट की थी, इसलिए कि उससे इंटरव्यू ले रहा था, तो लेकिन मुझे लगा नहीं, ये ठीक नहीं है ना। तो गालियाँ तो लोग समझते ही हैं। अब जैसे अंग्रेज़ों की गाली मदर के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेचारा इंडियन तो नहीं जानता था मदर, वो मदर बोलता है तो मदर का माँ होता है, चलो वहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया और गाली बना दिया, वो आज तक चला आ रहा है ना। तो अब एक बात और, जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? कुछ तो बनना चाहते हो। आर्मी की ट्रेनिंग है, एक अच्छा इंसान तो खैर बहुत मज़े उस समय बना देगा, है ना। ये चाहे या नहीं चाहे समय बना देगा, ठीक ना। अब ज़िंदगी में तो एक अच्छा सा आर्मी का ट्रेनिंग कर रहे हो, वेरी गुड। आर्मी का क्यों? आर्मी का ही क्यों पसंद है? लेकिन अब तो 4 साल का हो गया, फिर कोई नहीं, 4 साल के जिसको कहते हैं वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैंने बेल बिगन इज हाफ डन, कहने का मतलब हमारा मतलब है कि देश सेवा करना, इनकम कमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 साल का हो 2 साल का, उससे लेना देना नहीं, है ना। आज एक नया लड़का BA में पढ़ता हुआ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024-25 इसके लिए अच्छा हो, है ना। और मैं चाहता हूँ ये भी खुल के बात करो, क्योंकि राइट टू, तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है ना, राइट टू एक्सप्रेशन सबको है ना। लेकिन डर से लोग नहीं बोलते कि हमको मारेगा। कौन मारेगा यार? जब तक तुम्हारा समय पूरा नहीं होगा तो कोई नहीं मारेगा, है ना। जिस दिन समय पूरा होगा तो घर में भी घुस के मार देगा लोग, है ना। और मारना होता था 64 साल में जिंदा ही नहीं रहता, लोग मार देते हमको कब का कब। लड़कों ने भी बोला था आई विल बीट यू, है ना। अच्छा ओके यू कम एंड बीट मी, है ना। हाँ, इसलिए कि उसको एग्जाम में नकल नहीं करने देते थे। तब खैर कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जैसे माता पिता का पैर छूते हो, घुटना का छूता है ना, पैर छूता है, तो वहाँ बढ़ गया तो नीचे तक जाओ। लोग जो खाली ऐसे करेंगे, है ना, ये तो इससे बढ़िया नहीं करो, है ना। ये हाथ जोड़ो, है ना, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक। अब छोटी घटना बता रहा हूँ, मैं एक बार एयरपोर्ट में जा रहा था, बेटा हमारा गया छोड़ने के लिए, पैर छुआ, दूसरा आदमी एक उसका पेट ठोक रहा है, बोलता है बच्चे, मैंने आज तक बहुत दिन के बाद देखा किसी को पैर छूते हुए, है ना। लेकिन ये बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, 24 अच्छा हो, तुम्हारा पार्क सुंदर हो जाए, है ना। और इन बातों को याद रखो, 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ मतलब लाखों वोट्स, एंड पार्क इस बार डिसाइड करेगा कौन आएगा कौन जाएगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।